So, welcome back. This is the fourth part of the chapter International Organizations. And in this part, I'm going to discuss a few specialized agencies of United Nations and other organizations that are there in your chapter. So, the logo of all these agencies and organizations you can see on this slide. So, what we are going to discuss in this video is UNESCO, ILO, International Labour Organization, and this is UNICEF. So these three specialized agencies, they are added by the updatation of the syllabus. Okay, so according to the new syllabus that has come for 2021, these three new you have to read, which I have included in this presentation, and the others are already there in the chapter. They are given in green boxes, so many a times the students do miss them, but please don't miss it because they are asked sometimes for 2 marks and sometimes even for 4 marks. So this is International Monetary Fund, this is World Bank, World Trade Organization, International Atomic Energy Agency, Amnesty International, and Human Rights Watch. So all this I am going to discuss in this video. So watch till the end. Let's begin. So we start with UNESCO. This is the logo of UNESCO. The full form of UNESCO is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations. Please learn these full forms. It is asked for 1 mark. So many a times it starts for 1 marks, and in the form of MCQ also, and the students do get confused into these full forms and just miss that 1 mark by one word. Okay, so please learn them. So that is United Nations. Everywhere UN is United Nations. O mostly it is organization. So the three keywords here are educational, scientific and cultural, ESC. Established on 1946, in 1946, 4th November 1946. 193 member states it has and 11 associate members. Okay, see, when the memberships are granted, first usually the associate membership is granted, and then after a few years then they become full-fledged members. That goes for mostly all the organizations. So headquarter is in Paris, France. Okay, it's a specialized agency body of the United Nations. Main objective is to promote education, natural science, society, anthropology, culture, and communication. So in all these areas, UNESCO is working. See, the purpose here is to promote interactions in different areas. उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि दो कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज जो मल्टीलैटरल कोऑपरेशन है वो इंक्रीज करेगा. You start feeling more as one world. Okay, so इससे the possibility of peace increases. Fine. So इसलिए जो different bodies बनाई जाती हैं जिससे कि इंटरडिपेंडेंस और कोऑपरेशन को इंक्रीज करें, कंट्रीज को ज़्यादा चांस दें कि वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर पाएँ. एक हर एरिया में एक वर्ल्ड लेवल पे कोई फोरम हो, कोई बॉडी हो जिसपे उस इंटरकनेक्टेडनेस को न केवल डिस्कस किया जा सके बल्कि मैनेज भी किया जा सके. जैसे कि मैं बताती हूँ कुछ चीज़ें आपको. यूनेस्को, आपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स सुनी होंगी. ओके, ये हेरिटेज साइट्स की लिस्ट कौन बनाता है? ये यूनेस्को बनाता है, और यूनेस्को इसके लिए फंड भी देता है जिससे कि इन हेरिटेज साइट्स को मेंटेन किया जाता है. ये गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज करते हैं इन चीज़ों के लिए, दैट टू मेंटेन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. और ये बड़ी किसी भी मॉन्यूमेंट को इस हेरिटेज साइट में आने का एक बड़ा प्रेस्टीज का इशू होता है कि हमारे कंट्री के इतने मॉन्यूमेंट्स हेरिटेज साइट्स में जाते हैं. उसके बाद आप लोगों ने बहुत से डे सुने होंगे, जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, विमेंस डे है. तो ये सारे जितने भी डेज हैं, बहुत लंबी लिस्ट है. इफ़ यू सर्च इट ऑन द इंटरनेट, it's a long list of different days that are celebrated internationally by UNESCO. Fine. So what does it create? It create a sense of oneness. Cultural, educational, scientific जो development है वो एक जगह से जो direct किया जाता है, ऐसा sense ये create करता है. That's why these organizations are very important and they have become so prestigious and earn so much of repute. Okay. अब यूनेस्को के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताती हूँ कि इन 2017
In 2017, US and Israel have left UNESCO. इन लोग ने यूनेस्को को छोड़ दिया है. क्यों छोड़ दिया है? In 2011, Palestine became the full-fledged member of UNESCO, and in opposition to that, US had stopped the funding of UNESCO. ओके और उसके बाद फिर ये इतना बढ़ता गया अरियर फाइनली 2017 में यूएस ने उसको छोड़ दिया और इन्होंने ये कह के छोड़ा है दैट इट इज़ बायस्ड, द वर्किंग ऑफ यूनेस्को इज़ बायस्ड. ओके तो अब ये मेंबर नहीं है और इससे कुछ फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा फंडिंग पे और एक्टिविटीज़ पे, बट ओवरऑल यूनेस्को इज़ वर्किंग ब्रिलियंटली इन ऑल द एरियाज़. Okay, then the next organization that has been added into your syllabus is UNICEF. UNICEF again United Nations हो जाएगा. उसके बाद फिर I से क्या हो जाता है? इंटरनेशनल. चिल्ड्रन E से है यहाँ इमरजेंसी, F से फंड. ओके सो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड. ओके यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड. ये बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं. ये 3 वर्ड जो बीच में आ रहे हैं इसमें बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, जो बिल्कुल ध्यान से करिए इसको. इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1946 बाई द UN जनरल असेंबली as a body whose main task was to collect emergency funds for children and to help their development for all across the world. अब इसमें सिंपल सी चीज़ है, आपको कैसे याद रखना है. इसका लोगो भी अगर आप दिमाग में रखेंगे ना तो इसके सारे फंक्शंस आप लिख सकते हैं. लोगो में क्या है? यू कैन सी अ चाइल्ड एंड अ मदर. Okay, so the UNICEF is basically working for the welfare of children and mothers. तो वेलफेयर चिल्ड्रन की वेलफेयर में चिल्ड्रन के वेलफेयर में पहली चीज़ क्या आती है? पहली चीज़ आती है उनकी हेल्थ में. अगर आप देखें तो आता है उनका इम्यूनाइजेशन. ठीक है, और क्या आएगा? और आएगा न्यूट्रिशन. So if you work on these 2 things, the health of the children and the mothers will improve. Fine. So UNICEF is working so much for immunization. Immunization बहुत full fledged immunization program चलता है, and nutrition of the child and also the mother, the pregnant mothers. उनके nutrition पे आप लोगों ने बहुत से ads देखे होंगे टीवी पे. ओके तो ये गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करते हैं और उनके थ्रू ये काम करते हैं और ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं. ठीक है, यहाँ पर देखिए इस पे स्लाइड पे भी मैंने लिखा है चिल्ड्रन एंड मदर with HIV, enhancing childhood and maternal nutrition, improving sanitation because that goes to improve the health of the community at large, promoting education and providing emergency relief in response to disaster. Okay, इनका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है and 193 countries of the world are the member nations. Okay, see only this much content, whatever content has come from the CBSE I am giving you in the slide, so no need to get worry कि जो content add हुआ है उसके लिए हमें कहाँ पे सर्च करना है, वो सारा इन स्लाइड्स पे है. और उसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करती हूँ जिससे you can relate if you forget, and if individually it is asked it will not come for more than 4 marks. Okay, so 4 points try to give in the answer. Then the other organization is the International Labour Organization, ILO. It is the oldest organization, a specialized agency of the United Nations, established in 1990. लीग ऑफ नेशंस के अंडर इसको इस्टेब्लिश किया गया था. तो ये ओल्डेस्ट स्पेशलाइज एजेंसीज हो जाती है. अब लेबर ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका काम क्या होगा? लेबर स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना, लेबर के वर्किंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना, वर्किंग एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना, एक जस्टिफाइड वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना, जो लेबर सेक्टर में जो मेल फीमेल का डिफरेंशिएशन है उसको ख़त्म करना. ओके तो इन सारे एरियाज़ में ही ये काम करेगा. थोड़ा सा लॉजिकली अगर आप लोग थिंक करेंगे तो आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सारे बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है कि मैम इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन है कुछ याद नहीं हो रहा है, सब मिक्स हो जा रहा है. रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस आप लॉजिकली देखिए. लेबर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका काम क्या होगा? ओके जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है इनका हेडक्वार्टर्स. Fine. In 1969, it received the Nobel Peace Prize also for working brilliantly in these areas.
सो ये देखिए सारे वर्क फंक्शंस में लिखे हुए हैं, इंसेंटिव्स फॉर विमेन एंड मेल वर्कर्स टू एंगेज इन प्रोडक्टिव वर्क एंड टू क्रिएट सेफ्टी, parity means equality and self respectful conditions for them at the workplace. अंडरस्टूड. तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी ट्विस्टेड लैंग्वेज और इतनी फॉर्मल लैंग्वेज ही लिखिए. ओके, मीनिंग क्लियर होना चाहिए बस. Then you have now the three organizations that I discussed till now is added as per the new syllabus. These organizations that I am going to discuss now are already there in your book. Okay, IMF, International Monetary Fund, it headquarter is at Washington DC. Membership 189 countries are the members. Formed in 1944 at the Bretton Woods Conference. करता क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको रेगुलेट करता है, उनके फंक्शंस को देखता है. ओके, नाउ आईएमएफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये ध्यान रखनी है कि आईएमएफ में जो वोटिंग राइट्स हैं दैट डिपेंड्स अपॉन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर स्टेट्स, and that is the reason why the top 10 countries have got almost 55% of the voting rights. अब कंट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा होगा? उन कंट्रीज़ का जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो रिच कंट्रीज़ हैं. ओके, तो जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है उसको ज़्यादा वोटिंग राइट्स मिले हुए हैं, तो डिसीजन में उसका जो से है, दैट द से ऑफ दैट कंट्री इन द डिसीजन मेकिंग विल बी मोर डोमिनेटिंग देन द अदर कंट्रीज. Okay, so US tops the list. It has got 70.4% of the voting rights. इंडिया का कितना है? इंडिया का करीब 2.7% के आसपास है, इसी के आसपास है. ओके, और इंडिया करीब कॉन्ट्रीब्यूशंस में जाता है 8th या 9th प्लेस पे जा रहा है आईएमएफ में कॉन्ट्रीब्यूशंस को लेकर, अगर आप पूरा लिस्ट बनाएंगे तो. ठीक है, तो इतने पे ये जा रहा है और इनका कंट्रीब्यूशन यूएस का लोन 17.4%. इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डिसीजंस आईएमएफ में लिए जाएंगे, जिस भी तरह से उनकी फंक्शनिंग है, उसमें वेस्टर्न कंट्रीज डोमिनेट करेंगे. एंड दिस इज द मेन कंप्लेंट्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज टुवर्ड्स आईएमएफ. चौथा आपका ये ऑर्गेनाइजेशन फिफ्थ है जो, दैट इज वर्ल्ड बैंक. नाउ वर्ल्ड बैंक वाज आल्सो क्रिएटेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1945. इट्स एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. और जो वर्ल्ड बैंक है ये समझ लीजिए ये जितनी भी पुअर नेशंस हैं उनका बैंक है. तो जब पुअर नेशंस को लोन की ज़रूरत पड़ती है फॉर देयर बिग प्रोजेक्ट्स, देन दे आस्क द वर्ल्ड बैंक टू गिव देम लोन. समझ गए? तो आपको अगर कोई बिजनेस सेटल करना है तो आप अपने यहाँ के बैंक से लोन लेने जाते हैं. गवर्नमेंट्स को जब लोन चाहिए होता है तो वो वर्ल्ड बैंक से लोन लेने जाती है. ओके, किन किन एरिया में वर्ल्ड बैंक लोन देता है? ह्यूमन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए ले सकते हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट में मतलब आगे आपका जितना हेल्थ सेक्टर है या एजुकेशन सेक्टर है, ओके, उसके लिए आप लोन ले सकते हैं. उसके बाद रूरल डेवलपमेंट में है, रूरल डेवलपमेंट में आप हाउसिंग के लिए लोन ले सकते हैं. रूरल हाउसिंग के लिए गवर्नमेंट्स लोन लेती हैं. इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए बड़े बड़े लोन्स लिए जा रहे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर, यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर. गवर्नेंस मीन्स ई गवर्नेंस, इफ यू हैव टू बिल्ड अप द एंटायर सेटअप फॉर दैट एंड ऑल दोज थिंग्स, देन यू लोन कैन बी टेकन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक. बट वर्ल्ड बैंक ऐसे ही लोन नहीं देता है. प्रॉब्लम बस यही है, वर्ल्ड बैंक जब वो लोन देता है देन वर्ल्ड बैंक सेट्स अ लॉट ऑफ कंडीशंस. उनकी अपनी कंडीशंस होते हैं, उनके अपने इंस्पेक्शंस चलते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिसमें वो इंश्योर करते हैं कि जिन कंडीशंस पे लोन दिया गया है गवर्नमेंट्स को वो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए. एंड ऑफन द डेवलपिंग कंट्रीज हैव सेड दैट दिस वे द वर्ल्ड बैंक intrudes into the internal policies, into the economic policies of the states. तो वो एक तरह से इकोनॉमिक पॉलिसीज को कंट्रोल कर लेते हैं. ठीक है, तो इसलिए और वर्ल्ड बैंक में भी जो डोमिनेंस है वो वेस्टर्न कंट्रीज का ही होता है. ठीक है, हमेशा से वर्ल्ड बैंक के जो एमडी हैं वो एक यूएस नेशनल है. तो फिजिकली भी अगर आप देखिए तो इट इज़ सेटअप इन वेस्टर्न कंट्रीज ओनली. तो इनका हेडक्वार्टर्स भी वही है. तो इसलिए ये जो सारी चीज़ें हैं इसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये बड़ा है कि जिस तरह से वर्ल्ड बैंक की फंक्शनिंग है वो एक तरह से वेस्टर्न कंट्रीज़ को, डेवलप्ड कंट्रीज़ को डेवलपिंग कंट्रीज़ के में कंट्रोल दे रहा है. एंड इट हैज़ बिकम सोर्स ऑफ न्यू कॉलोनियलिज्म, विच यू कैन से.
in the poor nations, in the least developed countries. देन हम आते हैं WTO पे, अनदर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट्स के बीच का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो ये डिसाइड करती हैं कि ट्रेड जो होगा गवर्नमेंट्स के बीच में वो उसके रूल्स क्या होंगे। सो इट वाज फॉर्म्ड इन 1995, रिप्लेसिंग द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। गैट को इसने रिप्लेस किया था। गैट जो था वो चल रहा था 1948 से, तो 1948 से गैट चल रहा था और उसको रिप्लेस किया WTO ने 1995 में। 164 इज द मेंबरशिप ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। बट यहाँ पे भी वही देखिए, जितने भी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है सब में प्रॉब्लम बस वही है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो उसको डोमिनेट कर रहे हैं, उसमें डिसीजन मेकिंग को डोमिनेट कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक पावर, जो मेजर इकोनॉमिक पावर्स हैं, US हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, जापान हो गया, इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। एंड दैट इज़ द मेन कंप्लेंट ऑफ द डेवलपिंग नेशंस एंड द लीस्ट डेवलप्ड नेशंस एज वेल। अब आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी जो है IAEA। IAEA स्पेशलाइज एजेंसी है एंड इट रिपोर्ट्स टू बोथ सिक्योरिटी काउंसिल एज वेल एज द जनरल असेंबली। तो ये है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब देखिए ये एटम वाला स्ट्रक्चर यहाँ दिखा रहा है ना, बस वो दिमाग में रखिएगा। तो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी करती क्या है? दे एम्फसाइज ऑन द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। पीसफुल यूज के लिए ये काम कर रहे हैं। तो अब पीसफुल यूज के लिए काम कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर एनर्जी का जितना भी डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए जो रिसर्चेस चल रहे हैं ये उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, दे ट्राई टू प्रिवेंट ऑल द मिसहैप्स इन केस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको, जो सेफगार्ड्स हैं उनकी ये बात करते हैं। तीसरी चीज़ ये कहते हैं कि जितने भी पीसफुल आपने वो सेटअप्स किए हैं उनका, उन रिएक्टर्स का आप किसी भी न्यूक्लियर बम को बनाने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। ओके, it is an autonomous organization established in autonomous organization 195. This is 1995. There's something wrong here. Okay, so it reports both to General Assembly and the Security Council, encourages development of the peaceful application of nuclear energy, science and technology, provides international safeguards against misuse of nuclear technology and nuclear materials, and promote nuclear safety. ओके, रेडिएशन प्रोटेक्शन को प्रमोट करते हैं, न्यूक्लियर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस टू वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द एरिया ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो फर्स्ट वन इज एमनेस्टी इंटरनेशनल। इट्स अ नॉन गवर्नमेंट। अब ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन यहाँ डिस्कस किए गए ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, ये NGOs हैं। One is operating in UK and the other one which I will be discussing in US. तो ये Amnesty International यूनाइटेड किंगडम में बेस है। ओके, इसके ये कहते हैं कि इनके पास 8 मिलियन मेंबर्स हैं और सपोर्टर्स अराउंड द वर्ल्ड। The stated mission of the organization to campaign for a world in which every person enjoys all the human rights enshrined in the UN Declaration of Human Rights and other इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट। तो इनका पर्पस क्या है? ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना। ओके, ये करते क्या है? जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स इश्यूज वर्ल्ड में होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनको देखते हैं, उस पर अपनी रिपोर्ट बनाते हैं और रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। अब ये क्यों? क्योंकि इतना रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इनकी जो रिपोर्ट्स हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट्स जो हैं और इंटरनेशनल प्रेशर जो है, एक एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट हो जाता है और जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके बेसिस पे एक्शन भी ले सकता है। अब
जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वायलेशन को देखते हैं, और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, द मेन प्रॉब्लम इज द व्हाट द गवर्नमेंट से दैट दे हैव बीन बायस्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे है कि एक्चुअली ये उन केसेस को ज़्यादा क्रिटिकली प्रोब करते हैं जिनमें गवर्नमेंटल एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम ऑब्जेक्शन दैट द गवर्नमेंट रेज ओवर इट। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि कभी कभी ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होता है। ओके, सो बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज इसको पॉलिटिकली यूज करके और उसका एडवांटेज भी लेते हैं। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ह्यूमन राइट्स वॉच है, बेस्ड इन New York City, headquarter is in New York City, conducts research and advocacy of human rights. It pressures some governments, policymakers and human rights abusers to denounce, abuse and respect human rights. Okay, तो governments को pressurize करते हैं ये कि human rights को respect करें, और ये सब इसमें एक ये बहुत ही controversial है। जैसे कि recently अभी जो काफ़ी इसके ऊपर डिबेट हुआ था वो ये था कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन रेज द इशू ऑफ द ह्यूमन राइट्स ऑफ द टेररिस्ट। ओके, अब इसमें ये था कि फिर गवर्नमेंट से कहा कि अगर टेररिस्ट के, जैसे कि आप लोग ने सुना होगा कि कश्मीर में जो आर्म फोर्सेस हैं उनके ऊपर स्टोन पेल्टिंग होती है, तो उन्होंने वो पैलेट गन्स यूज़ करते थे वो उनको मारने के लिए। और एक इंसिडेंट भी हुआ था जहाँ पे एक मेजर ने एक टेररिस्ट को जीप के आगे बांधकर और उसको वो कर दिया था, तो उस पर बहुत ऑब्जेक्शन हुआ था। देन गवर्नमेंट रिप्लाइड टू दैट, गवर्नमेंट ने ये कहा कि व्हाट अबाउट द ह्यूमन राइट्स ऑफ द सिक्योरिटी पर्सनल्स। So if you're talking about the human rights of the terrorists, the human rights of the security persons, there's responsibility of the state to secure their rights as well. They are on duty. They are not gone there to get pelted by stones. तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत ही और काफ़ी हंगामा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने कश्मीर में कर रखा, और उसकी वजह से जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो बड़ी रिस्ट्रेन्ड वे में काम कर पाती हैं। तो ये इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। See, whatever content formally is there, it is there in the slide that you can see. मैं आपको कुछ इस तरह से बताने की कोशिश कर रही हूँ जिससे कि ये सारी चीज़ें कुछ आपके दिमाग में रहें, and you are able to produce that in your answers when you write answer in your exams. So this is all in the chapter of United Nations and its organizations, the new name of the chapter, and covered in 4 videos. I hope these videos are helping you. And if you have any query, please write in the comment section and I'll try to answer that. Thank you for watching. Bye-bye.